Question number 10, exercise 3.1. Plot the following point, check whether they are collinear or not. First, we draw xy plane, that is x dash, y dash. The points are up to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. First 1, 3, 1, 3 here, these point, suppose A, 1 and 3, minus 1 and 1, minus 1 and minus 1, these are minus 1 and B के coordinate minus 1 and minus 1, and these are minus 2 and minus 3. Coordinate of C are minus 2 and minus 3. When plotting these points, they are on same straight line, so these are collinear points. Two or more points lie on same straight line are collinear. Similarly, we check second part also. Question number 11. Point A, B and D are the three vertices of a square. This ABCD is a square. Coordinate of A are 5, 3. Coordinate of B are minus 2 and 3. Coordinate of C we have to find. Let's suppose coordinate of C are xy and coordinate of D are 5 and minus 4. Plot these points on the graph paper and hence find the coordinate of C. In square, we know that all sides are equal and diagonals are also equal and bisect each other at right angle. AC is the diagonal and BD is also the diagonal. So midpoint of AC and BD are equal. x1 plus x2 by midpoint formula. X is equal to x1 plus x2 by 2. Y is equal to y1 plus y2 by 2. Here x1 this, so x plus 5
is equal to, let's suppose these are x1 and y1. So x is equal to x plus 5 upon 2 and y is equal to y1 plus 3 by 2. Midpoint of AC and midpoint of BD are x is equal to minus 2 plus 5 by 2 and here y is equal to 3 minus 4 by 2. This x is equal to this and this y is equal to this. So comparing these, x1 plus 5 by 2 is equal to 3 by 2. x1 plus 5 is equal to 3. x1 is equal to minus 2. Similarly comparing the y, y1 plus 3 by 2 is equal to minus 1 by 2. On solving this, y1 is equal to minus 4. So coordinate of C are x minus 2, y minus 4. So coordinate are minus 2 and minus 4. Similarly, we see question number 12. Plot these points, find the coordinate of R, P, Q, R, S is a square. Suppose we draw P 10, Q 40, and S 13, R XY. As we solve question 11, we solve it as it is. Question number 13. Rectangle OPQR. O is the origin. This is rectangular. O P, here P 10 unit. O P Q and R. OP x axis के along 10 unit है and PQ y axis के along 8 unit है. Find the coordinate of PQR. The coordinate of origin are 0 0. 10 unit है x axis, तो x axis के ऊपर आपको पता है y 0 होता है, तो x का कोऑर्डिनेट 10, y का 0. हेयर ये 8 यूनिट है, ये भी 8 यूनिट है, तो y एक्सिस के ऊपर x हमेशा क्या होता है 0 और y की वैल्यू ये कितनी है आपकी 8. तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आर दिस. हम क्या करते हैं अब पी क्यू के कोऑर्डिनेट पूछें तो आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कि क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. यहाँ से आप चलते हैं, x एक्सिस 10 है तो बेटा ये x का तो पॉइंट 10 हो जाएगा, y एक्सिस यहाँ से 8 है तो क्यू के हो जाएंगे 10 और 8. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 14. P, Q, R are the vertices of parallelogram. Suppose
this polynomial PQRS is a parallelogram. By plotting the given point on the graph paper, find the coordinate of fourth vertex x, coordinate of P -2 and 2, coordinate of Q 8 and 2, coordinate of R 4 and -4, and coordinate of SR suppose x and y. Plotting these points on the graph paper, find the coordinate of fourth vertex x. Also from the same graph, state whether the coordinate of midpoint of PQ and RS, midpoints of PQ and RS. We know that opposite sides of parallelogram are equal. PQ की जो डिस्टेंस है बेटा वो किसके बराबर होगी, SR के। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस सारे का रूट। अब मान लीजिए आप PQ की डिस्टेंस निकालते हैं तो ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो PQ की डिस्टेंस निकल के आती है यहाँ से 8 -2, तो 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 का स्क्वायर, और इस सारे का रूट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 10। अब इसी तरह से ये जो डिस्टेंस आएगी SR, वो आपकी इक्वल होगी किसके, PQ के। तो SR की डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - x इसका होल स्क्वायर प्लस -4 - y इसका होल स्क्वायर, इस सारे का रूट, जो कि बराबर होगा बेटा किसके, 10 के, क्योंकि PQ की जो डिस्टेंस आएगी वो QR के बराबर होगी। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं आप, तो आपके पास आता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर -8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y रूट इज इक्वल टू 10, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आता है 16 और 16 32, तो 32 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x प्लस 8y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन यहाँ से बनेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x प्लस 8y इज इक्वल टू 68। Similarly students, as we read previous, PS की जो डिस्टेंस होगी वो RQ के बराबर होगी, क्योंकि ये भी क्या हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ, ये भी आपकी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो PS की डिस्टेंस आएगी वो RQ के बराबर होगी। तो इस तरह से हमने QR की डिस्टेंस निकाल ली, PS की निकाल ली। अब यहाँ से आपके पास आता है, इसको सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इस सारे का रूट, ये बराबर होगा किसके, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर -4y, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएंगे 52 इज इक्वल टू 4 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x -4y। इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 44 और 4 ये थे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा।
इस 8 को आप इधर लेके आते हैं तो आपके पास आता है 44 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4y। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो जो कि आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 68 प्लस 8x माइनस 8y। ये वैल्यू आगे पुट करते हैं। यहाँ पर 44 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू जो आपने पीछे से निकाली है ये पुट करेंगे 68 प्लस 8x माइनस 8y। 68 प्लस 8x माइनस 8y प्लस 4x माइनस 4y। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 44 माइनस 68 इज इक्वल टू 12x माइनस 12y। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 4 और आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 24 इज इक्वल टू 12 को हमने कॉमन ले लिया x माइनस वाई, 12 से इसको काट दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस वाई पुट इन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करते हैं। फर्स्ट आपकी इक्वेशन ये है, मैं एक बार फर्स्ट इक्वेशन को फिर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 68। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हेयर इट इज गिवन। अब इसमें आप x की जगह वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 2, तो आपने पुट कर दिया y माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8 इंटू एक्स की जगह y माइनस 2 प्लस 8y इज इक्वल टू 68। ये आपके पास आ गया वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 68। इससे इसको काट दिया वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर और माइनस का 4y और आपके पास ये बच गए 16 और 4 20। इसको इधर लेके आएंगे 68 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वेयर माइनस 4y ये आपके पास बच गए 48 इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाई 2, क्योंकि 2 से ये सारे डिवाइड हो रहे, तो वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे अब इसके वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बेटा y को कॉमन लेते हैं तो y माइनस 6 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 6 वाई माइनस 6 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 6 और y की एक वैल्यू आ गई माइनस 4। अब यहाँ से y की वैल्यू x में पुट करेंगे, यहाँ पर जो कि ऊपर था आपके पास y की वैल्यू 6 पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6 x इज इक्वल टू 4। तो अपने x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 6। तो अपने पास जो टर्म्स आती हैं वो आगे इसने पूछा था
कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। अब माइनस लेंगे आप यहाँ से, जब आपने वाई की वैल्यू -4 लेंगे तो एक्स, वाई की वैल्यू -4 लेंगे तो एक्स आपका -6 आ जाएगा, जो कि आपका गिवन है। अब आपसे पूछता है ये कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ, जैसे अपने पास ये था पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, तो पी के पॉइंट थे अपने पास -2 and 2, क्यू के थे 8 and 2, आर के हमने निकाले 4 and 6 और एस के अपने पास आ जाते हैं। अब एस के इसने दे रखे थे, एस के निकाले हैं सॉरी हमने 4 and 6 और आर के इसने दे रखे थे 4 and -4। अब ये कहता है इसका जो मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट निकालो, यदि वो बराबर तो आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप दिखा दीजिए कि इसके मिड पॉइंट ये हैं, इसके मिड पॉइंट ये हैं, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, इसके मिड पॉइंट आ गए। यहाँ से x1 + x2/2 x के पॉइंट आ गए, y1 + y2/2 इसके मिड पॉइंट आ गए। अब 15 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग फिगर, बेटा ये फिगर दे रखा है जिसमें ये आपका x डैश, ये है आपका y डैश, इसमें इस तरह का एक स्केच बना रखा है, फिगर है आपका, जिसमें एक एक कोऑर्डिनेट हैं -5 और 0, इसके हैं 5 और 0, और ये कहता है कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, A, ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका C, और A, B और ये आपकी D, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D। अब यहाँ से बेटा ये ओरिजिन है, ये इसकी डिस्टेंस 5 है, ये इसकी डिस्टेंस 5 है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी कितनी होगी 10। तो यहाँ से ये कहता है कि C के पॉइंट और D के पॉइंट आप बताइए कितने होंगे। तो यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हो आप इसको, क्योंकि अपने को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से AB की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस AC की होगी, वही डिस्टेंस BC की होगी। मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ, फिर ये इजी सा क्वेश्चन है, आप अपने आप इसको सोल्व कर लेंगे। AB की जो डिस्टेंस है बेटा x2 - x1 यानी 5 + 5 10 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 का स्क्वायर, इस सारे का रूट। ये जो डिस्टेंस आएगी, मान लीजिए आपने C के पॉइंट मान लिए x और y AC के बराबर, यहाँ से आ जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 या 0 - 5 सेम रिजल्ट, y का होल स्क्वायर, इस सारे का रूट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसको आप सोल्व करेंगे तो 100 = x² + 25 + 10x + y², आपके पास इक्वेशन आती है कि x² + y² + 10x = 75। इसी तरह से बेटा आप यहाँ से BC की इक्वेशन बनाएंगे, और जैसा कि हमने पहले किया है दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इसको सोल्व कर देंगे, x y की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।